you know the concept of simple interest and compound interest. And so today what we are going to see is basically the concept of EMI. Actually, there are two concepts which are very, very popular and most frequently asked in most of the aptitude exams, including CAT. And they are equated monthly installment or equated annual installment. These two kinds of questions are there. And we are going to talk about that. So that topic normally gets ignored in most of the classes. So I'll try and cover these two. And during this, I'll be not only talking about the concept of EMIs, but also I'll give you short tricks how to do these questions, not following the original method, the very complex formulas. ठीक है, वो हम कोशिश करेंगे कि हम उसको 1 मिनट के अंदर किसी क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं. That is going to be the objective. Let's begin with a simple question. What is difference between simple interest concept and compound interest concept? It goes something like this. Let me take an example and first explain what is simple interest and compound interest. तो इसको एक बार ध्यान से देखेंगे and then we'll jump into EMIs. Let's take a example here. Suppose I have got a principal of say rupees 1,000 and the rate of interest is given to us as say 10% and say time period is given to us as 3 years. This is the data which is already given to us. All right. And we want to find out simple interest as well as compound interest, etc. तो एक सिंपल सा तरीका है, इसको देखेंगे पहले. We'll write something like simple interest and compound interest and make this a small table. First year, second year, third year, because time is 3 years. Now, please remember, the simple interest is always charged on the principal only. Principal is how much? 1,000 rupees. Can you tell me, एक साल का interest कितना होगा? एक साल का interest कितना होगा? 10. 1,000 का 10% कितना होता है बेटा? 1,000 का 10%? 100 rupees, yeah. 100 rupees. So it is going to be 100 rupees for the first year, 100 rupees for the second year, and 100 rupees for the third year. So this is going to be the simple interest. And if I add them, what do I get? 300 rupees. So this is the simple interest for 3 years. And if I want to find out how much I need to pay at the end of third year, it is going to be principal plus this. ये add कर देंगे. This is principal amount and this is simple interest amount. We'll add them, and this gives me how much? 1,300. ठीक है? So this is very, very simple. Without using the formula, you can do that. It can be 10 years also. It doesn't matter. Now, when we go to compound interest, let's try and understand it very clearly. Simple interest तो मिलेगा ही मिलेगा. ये तो मिलेगा ही मिलेगा. What is this 100 rupees? It is the interest on principal in the first year. What is this 100 rupees? Is again interest earned on principal for 1 year. And what is this? Same. 1,000 रुपए के ऊपर 10% simple interest जो मिला. And how they are different? Please watch this carefully. In first year, simple interest and compound interest are same. They do not change. But in second year, what happens is प्रिंसिपल पे हमने तो इंटरेस्ट चार्ज कर लिया है, पर जो पुराना इंटरेस्ट था लास्ट ईयर का, उस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, मिलेगा. तो इस 100 रुपीज पे पुराने इंटरेस्ट का 10%, हाउ मच इट इज गोइंग टू बी? 10 rupees. Very good. And here, when we go to third year, प्रिंसिपल पे तो मुझे मिल चुका है. अब पुराने इंटरेस्ट पे, पुराना इंटरेस्ट कितना है? Can anybody tell me? 110. No, this whole thing. 210. 210. The previously accumulated interest up till now is 210. So that is 210. इसका 10% कितना होगा? इंटरेस्ट इस पे मिलने वाला है. तो 210 का 10%. 21. 21. I hope you got the logic here. And here, what we get is 300 plus 31.
So this becomes how much? 331. Now, if I have taken this 1,000 rupees on 10% compound interest, how much I need to pay after 3 years? This is the interest amount plus the principal. So it is going to be 1331. So I hope the fundamental is clear. Here, in this case, we only get interest on principal, whereas in this case, we get interest on not only on principal, but also on the previous year's accumulated interest. यहां पर क्यों नहीं मिला? बिकॉज इसके पहले हमारे पास कोई accumulated interest था ही नहीं. So I hope this funda is clear. This is amount paid at the end of 3 years, simple interest wise, and this is amount paid 3 years later as per compound interest. अगर compound interest charge करें. So I hope this fundamental is clear. ठीक है? Is it clear, guys? One second. Yes, sir. Yes, sir. Just give me one more minute. Let me allow people to walk into the class. Okay. Okay. So I have allowed everybody. Okay. Now, so I hope this part is clear. In case you have any question, you can ask me right now. Anybody from the webinar. अगर आपको कोई सवाल लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं अभी आप if there is any question. Is this clear? Yes, sir. Now, what do you mean by EMIs? When see EMI का मतलब क्या होता है पहले देख लेते हैं. So EMI is a concept where you take a loan, and I'm taking assuming that you are a customer. You take a loan and you pay it every month a fixed amount, and at the end of the period जो हम डिजाइन करेंगे उसके हिसाब से लोन पूरा पे हो गया होगा. मतलब प्रिंसिपल भी पे हो गया होगा और इंटरेस्ट भी पे हो गया होगा. बट ऑल दीज अमाउंट्स आर इक्वल. ठीक है? Then there is also a concept which is called EAI. Here you do not pay every month. Here you pay annually, equated annual installment. Say home loan आपके पेरेंट्स ने अगर लिया हुआ है, so what do they pay? Do they pay EMI or EAI? EMI. EMI. लेकिन जो कैट में और दूसरे एग्जाम्स में most of the questions which appear, they are always on EAI. हालांकि इनको भी हम इन जनरल EMI बोलने लगते हैं, पर ये इक्वल इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट कहलाते हैं. Now this equal monthly installment or equal equated annual installment could be of two types. EMI oblique EAI, they could be of two types. Based on simple interest idea, a second could be based on compound interest idea. ठीक है? I hope you understood the meaning of EMI and EI. They are equated, means equal amount. Whether it is monthly or annual or quarterly or half yearly, doesn't really matter. But अगर आपने पहले महीने में जो पैसा दिया वो दूसरे महीने में भी दोगे, तीसरे महीने में भी सेम दोगे, और अंत में क्या होगा? प्रिंसिपल भी आपका पेमेंट हो जाएगा, रीपे हो जाएगा, और इंटरेस्ट जो भी होगा वो भी पे हो जाएगा. Now, can you tell me इन दोनों में क्या डिफरेंस है? Anybody who has gone through this idea earlier, कि what do you when we talk about EAI based on simple interest, उसका मतलब क्या है? और EAI based on compound interest, इसका क्या मतलब है? Feel free, nobody is judging you, so you can openly discuss with me. Even if you are wrong, it doesn't matter. Yes, please. Let me take an example. If you're not ready to take a chance, because most of the public that is attending is, you see, not known to you. Known आदमी के सामने आदमी खुल सकता है, पर unknown के सामने खुलना थोड़ा सा मुश्किल होता है. Here, suppose you pay certain installment. Suppose अपन ने 100 rupees की installment पे की, 100 rupees की पे की, 100 rupees की पे की, 100 rupees की पे की, इस तरह की installment पे की है. So whenever, suppose you paid this in the first year, you paid in the second year, you paid in the third year, you paid in the fourth year, and so on and so forth. It can go on. Here, when you are paying these installments, except for last year, you do not pay any interest on that. आप क्या पे कर रहे होते हो उस टाइम पे? प्रिंसिपल पे कर रहे होते हो.
ठीक है. Whereas in case of compound interest, what happens is, and I'm going to work on these ideas in detail, don't worry. Suppose you pay 100 rupees, 100 rupees, 100 rupees and 100 rupees, like that. So here what will happen, please watch this. And I'm going to give you slightly complex thing now. कि अगर मैंने 1000 रुपए का प्रिंसिपल था और इसके 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स काटे हैं, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, तो कितने कितने के होंगे? और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन एज 10%. 100 each. कितने इंस्टॉलमेंट्स हैं? इंस्टॉलमेंट्स आर 3. इंस्टॉलमेंट्स आर 3. 100 each. तो people will have the tendency of saying, sir, 1000 by 3, 333.33, correct? But that is No. not correct. Because पहली बार जो आप इंस्टॉलमेंट दोगे, जो भी इंस्टॉलमेंट मैं फिक्स करूंगा, वो कैसे निकालते हैं, I'll tell you. वो जो मैं इंस्टॉलमेंट आपको निकाल के दूंगा, उसके 2 पार्ट होंगे. 2 पार्ट कैसे होंगे? देखो, पहले साल में, फर्स्ट ईयर में क्या होने वाला है? 1 साल का इसमें इंटरेस्ट लगेगा, प्रिंसिपल प्लस 1 साल का इंटरेस्ट. कितना हो जाएगा? 1100 rupees. 1000 rupees plus 10% of the principal. Now suppose, I'm just telling you a supposition, not a correct answer. इसमें अपन ने 400 रुपए का एक इंस्टॉलमेंट दे दिया. 400 रुपए का इंस्टॉलमेंट दे दिया. तो अब ये अमाउंट कितना हो गया? 700 rupees. Now we can very well say, please understand this, we can very well say कि इस 400 rupees का बाइफर्केशन क्या है? 100 rupees इंटरेस्ट पे किया और 300 rupees प्रिंसिपल पे किया. प्लीज अंडरस्टैंड, जब हम सिंपल इंटरेस्ट में पे करते हैं कोई इंस्टॉलमेंट, तो हम केवल क्या चुका रहे होते हैं? प्रिंसिपल. यहां पर ऐसा नहीं होता. यहां पर 100 रुपीज इंटरेस्ट पे किया हमने, क्योंकि दिस इज द 400 का इंस्टॉलमेंट. नाउ अब मेरा प्रिंसिपल कितना हो गया? सोचो, अब मेरा प्रिंसिपल कितना हो गया है? 300 I have paid. So out of 1000 rupees, 300 I have paid. Now my new principal is how much? 700. 700. Kindly, unless until you want to talk to me, अपना microphone please mute mode में रखो. In case you want to talk to me, only then start, please. ठीक है? Okay. Now 700. अब 700 के ऊपर अब मुझे इंटरेस्ट लगेगा 10%. तो ये कितना हो जाएगा? 70. ये हो गया 770. Now if I pay 400 rupees now, if I pay 400 rupees, तो 70 रुपीज जाएगा इंटरेस्ट में और प्रिंसिपल में कितना पेमेंट होगा? नाउ आई एम पेइंग अगेन 400 बिकॉज़ माय ईएमआई इज 400. तो 70 तो इंटरेस्ट में चला गया. सो नाउ इट इज गोइंग टू बी 330 प्रिंसिपल विल बी पेड एंड सो ऑन सो फोर्थ. इस तरीके से क्वेश्चन बनता है. एंड दिस मेक्स दिस कॉन्सेप्ट क्वाइट डिफिकल्ट टू अप्रिशिएट कि यार ये चीज होनी क्या चाहिए? 400 होना चाहिए, 410 होना चाहिए, 450 होना चाहिए. What it should be, so that at the end of 3 years मेरा 1000 रुपीज का प्रिंसिपल भी पे हो जाए और साथ में जो बचा हुआ प्रिंसिपल का हम बार बार इंटरेस्ट एक्रू कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो भी पे हो जाए. So that is compound interest. It is it's a very complex formula if you are a student of financial management in BBA. So there is a topic called time value of money. I'm sure some of you must be the students of BBA final year, and there this topic is there, and they give you very complex formula, and those formulas are so tedious कि उनका इस्तेमाल हम एप्टीट्यूड एग्जाम में नहीं कर सकते. अगर करने जाएंगे, will not be able to complete the paper, or so easy question छूट सकते हैं. So let's try and see how to handle these questions. ठीक है? Let me begin with the concept of simple interest. EAI or EMI based on simple interest. Let me take an example. Suppose, and watch this is the most critical part. बाद में एक बार हम आइडिया समझ में आ जाएगा तो फटाफट क्वेश्चन 30 सेकंड 40 सेकंड इससे ज्यादा नहीं लगने वाला, इसको समझना. Suppose I take a principal और मैंने बोला से कि 3 इयर्स के बाद इसका मुझे पेमेंट करना है. अभी क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है? सिंपल इंटरेस्ट आइडिया चल रहा है. ठीक है?
तो मैं यहां पर क्या पे करूंगा, यहां पे मैं करूंगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, and this interest is going to be simple interest, because don't forget this is simple interest. You can assume an example also here. You can assume an example also here. Suppose this is 100 rupees, rate of interest is 10%. So what we are going to pay after 3 years is 130 rupees. I hope this idea is making sense to you. I'm just supposing now a figure. Suppose we have got 100 rupees and at the rate of 10%, तो 3 साल में कितना पे करूंगा मैं? This amount is going to be 130 rupees. एक साल का इंटरेस्ट होगा 10 rupees, तो 3 साल का होगा 30 rupees, because simple interest every year is same, 130 rupees. But I decide not to pay like this. I decide not to pay like this. Guys, let me tell you, Priya Paliwal, your microphone is on, so keep it in the mute mode, and whenever you want to talk to me, अपना space bar press करो and you can talk to me. स्पेस बार से हाथ हटाओगे तो वो फिर से म्यूट हो जाएगा, स्पेस बार पे हाथ रखोगे तो फिर से अनम्यूट हो जाएगा. इज दैट ओके बेटा? ओके सर. हाँ, तो उसमें क्या है, आपके बैकग्राउंड का नॉइस नहीं आएगा, इट विल नॉट डिस्टर्ब द रेस्ट ऑफ द क्लास. ओके, सो 130 rupees. नाउ आई डिसाइड आई एम नॉट गोइंग टू बी पेइंग लाइक दिस. आई पेड इन 3 इंस्टॉलमेंट्स. एक यहां पे करूंगा, एक यहां पे करूंगा और एक यहां पे करूंगा. अभी भी मैं लोन अपना कितने साल में पे कर रहा हूं? 3 साल में. ये है end of year 1, this is end of year 2, and this is end of year 3. ये ऐसा होगा. अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं इस तरीके से पे करता हूं तो मैं क्या 130 रुपीस पे करूंगा या उससे कम करूंगा या उससे ज्यादा करूंगा? यस प्लीज. अगर मैं इस तरीके से पे, एक तो तरीका ये हो गया कि मैं 3 साल बाद पूरा ये 130 दे दूंगा और काम खत्म हो जाएगा. अगर मैं इस तरीके से पे करूंगा तो मैं ओवरऑल अमाउंट कम दूंगा सामने वाले को कि ज्यादा, इस 130 दूंगा या इससे ज्यादा दूंगा? यस प्लीज. सर कम दोगे. कम क्यों कम दूंगा, जरा थोड़ा ये भी बताओ मुझे बेटा. सर बिकॉज जो आपने जो लास्ट ईयर का जो रहेगा ना, वो आपको इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा. Very और good. सेकंड Excellent. थोड़ा सा Excellent. ज्यादा. That is the idea I wanted you guys to understand. कि सपोज मैंने कुछ हिस्सा, let's try and say 50 रुपए या 40 रुपए यहां पे कर दिया, 40 रुपए पे कर दिया. तो देखो, पहले साल में मुझे 100 रुपीस पे 1 साल का इंटरेस्ट देना पड़ा पहले साल में. फिर मैंने 40 रुपए पे कर दिया. अब मैंने जो 40 पे किया है, ये ध्यान रखना, इसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है, केवल प्रिंसिपल पे किया है. दैट इज व्हाट इज द ईएमआई ऑन सिंपल इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट इज. यहां पर मुझे कितने पे करना है इंटरेस्ट एक साल का? 10. 100 माइनस 40. तो अभी यहां पर मैं पे करूंगा 60. एक साल तक 60 रुपीस पे करूंगा. सपोज मैंने 40 फिर पे कर दिया यहां पे, फिर से मैंने 40 पे कर दिया यहां. अब मैं तीसरे साल, देखो ये फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकंड ईयर के एंड में मैंने 40 रुपए दे दिए. दिस मनी विल बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रिंसिपल, नॉट फ्रॉम इंटरेस्ट. ठीक है. अब मैंने यहां पर कितने अमाउंट पे इंटरेस्ट दूंगा मैं? यहां पर कितने अमाउंट पे? 20 फॉर 1 ईयर. 20 फॉर 1 ईयर. ठीक है. अब मुझे यहां पे क्या पे करना होगा, जरा सोचो. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आइडिया. तो मुझे तो पहले ये 20 रुपीज जो प्रिंसिपल है ये तो पे करना ही पड़ेगा, प्लस अभी तक का इंटरेस्ट. अब जरा इसको ध्यान से देखना, यहां पे इंटरेस्ट कितना हो गया था, जरा सोचो. 100 रुपीज का 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना होता है? 100 10% into 1 by 100. Isn't it? Yes. May I request you to keep the microphones in the mute mode, please. Otherwise, I'll have to unmute you. ठीक है. तो यहां पर मैं ₹10 पे करूंगा. ये ऐसे कैलकुलेशन हुआ. यहां पर कितना पे करूंगा? It is going to be 60 into 10 into 1 by 100. यहां पे कितना हो जाएगा? ₹6. यहां पर कितना इंटरेस्ट होगा? 20 into 10 into 1 divided by 100. यहां कितना हो जाएगा? ₹2. जरा देखो, यहां 10 रुपीस,
यहां 16 रुपीज प्लस 2 18 रुपीज, मतलब मैं 18 रुपीज इंटरेस्ट भी पे करूंगा एंड में। अभी मैं टोटल कितना पे कर रहा हूं जरा देखो, 100 रुपीज इज अ प्रिंसिपल एंड 18 रुपीज इज अ इंटरेस्ट। सो ओवरऑल हाउ मच आई एम पेइंग 100 है थ्रू दिस मेथड 118 रुपीज। अगर मैं सीधा 3 साल बाद पे करता तो 130 देता। इस लेकिन गाइज ये क्वेश्चन बहुत अच्छा नहीं बना इन द सेंस कि ये अमाउंट ईएआई नहीं है, क्योंकि 40 और आखिरी में क्या गया है, आखिरी में क्या गया है 38, तो ये ईएआई नहीं है, पर ये इंस्टॉलमेंट तो है। एक 40 की इंस्टॉलमेंट, दूसरी 40 की इंस्टॉलमेंट और तीसरी वाली 38 रुपीज की इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो जरा सोचो कि इस तरह पे करना अच्छा है, इस तरह से पे करना अच्छा है। लेट्स टेक अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट। और एक खास बात और बताना चाहूंगा, फोकस ऑन दिस एंड दिस, प्लीज पे अटेंशन हियर इन दीस थ्री। ये यहां पर इंटरेस्ट था, ये यहां पर इंटरेस्ट था और ये यहां पर इंटरेस्ट था तीसरे साल में। वॉच दिस, इसमें क्या कॉमन चीज है, 10 into 1 by 100 is common, 10 into 1 by 100 is common, 10 into 1 by 100, 10 into 100 by, तो कैन आई राइट समथिंग लाइक दिस कि इसको लिख सकता हूं मैं 10 into 1 by 100 और ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूं, ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूं 100 plus 60 plus 20, 100 plus 60 plus 20, I can write something like this. Now how much is this, how much is this, this is 18 रुपीज। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 18 रुपीज। देखो 180 का 10%, 180 का 10% is how much 18 rupees, 18. and that is the interest. So we don't have to calculate this in 1, 2 and 3 steps. आप देखोगे जितना आप पे करते जा रहे हो उतना मैं इससे माइनस करता जा रहा हूं। यू कैन सिंपली ऐड देम। ये क्या है जरा ध्यान से देखना, 100 रुपीज पे इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर 1 ईयर, 60 रुपीज पे इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, 20 रुपीज पे इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। सो अगर एक ही साल का इंटरेस्ट निकालना है और प्रिंसिपल अलग अलग है 100, 60 and 80, I can add them and find out interest of 1 year directly. So let's try and understand this question, this particular thing with a few examples, and I'm going to take multiple examples, don't worry, और उसके थ्रू इस आइडिया को कंप्लीट करेंगे। It's very important for most of the exams, so let's try and see that. We are still in this CI, simple interest idea, calculating EMI. What I'm going to be doing now is I'll share a document with you, screen share करूंगा मैं, उस क्वेश्चन को आप पढ़ोगे and then we'll be attempting that. ठीक है, so kindly read the question, take down the data, whatever the is important fact of the data. Let's start with this. Can you see the question please on the board? Hello? Yes. Yes, sir. Okay. The question number 1 says, what is the annual installment will discharge a loan of rupees 1025 due in 2 years at 5% per annum? Let's understand the question first. I'm writing this question here. The amount due is rupees 1025. Time is 2 years. And R is also given to me as R is given as 5%. ठीक है, and what we have to find out? We have to find out installment. मुझे ये पता करने का है कि कितने की इंस्टॉलमेंट बनेगी। Guys, let's understand this question. ठीक है, I have written the data on the board. I hope everybody has read the question. The amount due is 1025. इसका मतलब क्या है, कोई बता सकता है प्लीज? What is the meaning of this amount due? Go ahead, please talk. Please tell me, इस amount due का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मुझे 2 साल बाद कितना पैसा चुकाना है? 1025. This is not the principle. This is not the principle. He said amount due after 2 years. Let's read the question once again. एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, ठीक है? And I have no problem in sharing it again. What annual installment will discharge a loan of rupees 1025 due in 2 years? 2 साल बाद
rate being 5%. ठीक है? Now watch this. इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका क्या है? मैं ऐसा लेता हूं कि let installment be of ₹100. I know it is not correct. X लेते हैं ना, पर मैं यहां से 100 से चालू कर रहा हूं. तो अपन क्या करेंगे? पहले ₹100 पे करेंगे और फिर से क्या पे करेंगे? ₹100 और हमारा लोन चुक जाएगा. ठीक है? ₹100 प्लस ₹100 हमारा लोन चुक जाएगा, ऐसा हम मान रहे हैं. जरा ध्यान से देखना. दिस इज एंड ऑफ ईयर 1 एंड दिस इज एंड ऑफ ईयर 2. ठीक है? नाउ वॉच दिस केयरफुली. यहां से लोन चालू हुआ है. ये 0th टाइम जब हमने लोन लिया था. क्या लोन था मुझे मालूम नहीं है. मैं आई कैन फाइंड आउट बट आई डोंट नो. यहां पे मैंने लोन लिया तो 1 साल पे मैं 1 साल में पूरा प्रिंसिपल जो होगा उस पे लोन चुकाऊंगा. पी पे फॉर 1 ईयर. और यहां पर मैं लोन कितना, यहां पर प्रिंसिपल मेरा कितना हो जाएगा बताओ? P माइनस 100. इस पे क्योंकि मैंने बोला पहले जब सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो प्रिंसिपल ही पेमेंट होता है. तो यहां पर भी 1 ईयर के लिए पेमेंट करूंगा. आई होप इट इज ओके. ठीक है? Yes, sir. नाउ वॉच दिस. ये ₹100, अब ध्यान देना, ये ₹100 तो 100 ही माने जाएंगे. पर ये ₹100 आई एम राइटिंग समथिंग एंड आई वांट यू टू टेल मी द मीनिंग. दिस इफ इट वाज पेड 1 साल पहले तो मैंने ₹100 दिया. अगर मैं डिसाइड करता कि मुझे ₹100 नहीं देना है तो मैं यहां पर कितना पैसा दे रहा होता? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5 years. Let me reiterate what I'm saying. मैंने ₹100 ये 1 साल पहले दे दिया, लास्ट ईयर के 1 साल पहले दे दिया. करेक्ट? राइट? नाउ अगर मैं ये ₹100 यहां नहीं देके यहां देता तो कितना रुपीस पे कर रहा होता? 200 plus interest. दिस 100 नहीं, ये 100 तो दूंगा ही दूंगा, इसकी केवल बात कर रहा हूं. तो इस 100 का 1 साल का इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट रेट क्या है? 5%. ओके, सो हाउ मच आई विल बी पेइंग? आई विल पे ₹105. इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. इस जो 1 साल पहले दिया है अगर यहां नहीं देके यहां दूंगा तो ये 100 भी देना पड़ेगा और 1 साल का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा मुझे. मतलब दिस अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 205. ये कि ₹100 और प्लस इतना 205. Watch this, and this is the trick here, which is we call using multiplier. If I am paying 205 in total, कैसे पे कर रहा हूं? अभी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहा हूं. ये इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर रहा हूं. कैसे पे कर रहा हूं? सीधा आखिरी में दे रहा हूं. तो मुझे कितना देना पड़ रहा है? 205. Now the question says कि this amount actually is this 1025. Means 205 is 1025. Now tell me, how can 205 become 1025? I must multiply something. What should I multiply? And that is called multiplier. Multiplier is this divided by this. Yes, please. I'm waiting for the answer. 5. 5. Very good. कैसे निकालते हैं? 1025 divided by 205 किया तो 5 times आ गया. ये 5 is the multiplier. 5 is the multiplier. 5 is the multiplier for final amount. So this multiplier can also be used for EMI. अगर 5 यहां multiply करूंगा तो आ जाएगा ये 500 रुपए. My answer to this question is going to be 500. Now watch this, understand this question very, very carefully, because here I'm not trying to solve it fast. I'm trying to give you, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है. मतलब ये सब पहले मैं ड्रामा किया हुआ है. I can do this question without even drama. कि 500 रुपए की अगर तुम 2 किस्त देते हो, ध्यान से सुनना, 500 रुपए की अगर तुम 2 किस्त देते हो तो तुम टोटल पेमेंट कितना करोगे? 1000 रुपए का. और आपका ये अमाउंट डिस्चार्ज हो जाएगा. डिस्चार्ज मतलब पे हो जाएगा. ये अमाउंट कैसे बना था? ये अमाउंट कैसे बना था? Accumulate. ये प्रिंसिपल था और 2 इयर्स का
5% के हिसाब से बनाया था मैंने, तो ये हो गया था 1025, ऐसा हो गया। लेकिन अब मुझे 1025 नहीं पे करना पड़ेगा, बिकॉज आई एम पेइंग इन इंस्टॉलमेंट्स। I'll have to pay only a installment of 500। 500 का यहां, 500 का यहां देंगे, लोन डिस्चार्ज हो गया। ठीक है? Can I ask you a question? If you are intelligent enough and engaged in this class, tell me कि लोन कितने का लिया था? लोन कितने का लिया था? What was the principal amount? 1000. अरे ऐसा मत कर बेटा, मतलब जरा सोचो, अगर हमने प्रिंसिपल 1000 का लिया था, जरा सोचो, यूज अ कॉमन सेंस, और मैंने 500 की 2 किस्त दी, तो क्या मैंने इंटरेस्ट कुछ दिया क्या? No. नहीं दिया। लेकिन इसमें तो इंटरेस्ट दिया हुआ है 5% के हिसाब से। Anyone please? We'll calculate 5% and subtract. बताइए अगर प्रिंसिपल, देखना, प्रिंसिपल प्लस, मुझे प्रिंसिपल निकालना, P into 5 into 2 by 100, and this is equal to how much? 1025. Are you there? Yes. प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट मिलाकर के 1025 2 साल का होना चाहिए। P निकालना है। कैन यू डू दैट? Yes. प्लीज बताइए। ये भी क्वेश्चन बनता है कई बार, और इसमें बच्चे थोड़ा इंस्टॉलमेंट निकाल लेते हैं, पर इसमें गड़बड़ कर देते हैं। तो देखो 10 से ये गया, 0 चला गया, दिस इज गोइंग टू बी 11p इज इक्वल टू 10250। ये 10 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई होप यू आर एबल टू अप्रिशिएट दिस। p plus p by 10 is equal to 1025। now if I take LCM of this is 10p plus p, 11p, और 10 जाके इधर मल्टीप्लाई हो गया, so p is going to be 10250 divided by 11। it is going to be some decimal figure, I understand। इतने रुपीस का लोन लिया होगा। Can somebody tell me what is this principal, please? फटाफट कैलकुलेटर यूज कर लो। 10250 divided by 11 1.81. कितना? 931. 931। 931.81. Your voice is Yes, breaking. sir. 931.8181. This is the principal taken. This can also be a question. Let's try and do one more question of this kind, then I'm going to be offering variety in this, and as well as how to solve it in 30 minutes. I hope you take the screenshot of this. A good student will always make notes of everything that teacher is saying. So please ये होना चाहिए आपके पास में। Have you taken the notes? Can I move ahead? Yes, sir. Okay. Now let me take another example and help you understand this much better कि actually इस question को फटाफट करते कैसे हैं। So I'm going to be sharing the screen once again, and let's take question number 2. Now watch this, what it says. I hope it is readable clearly. A cell phone is available for rupees 600 or rupees 300 cash down payment together with 360 to be paid after 2 months. Find the rate of interest charged under this scheme. Guys, this is not a question of EMI. It is not a question of, still we'll do it. ठीक है? अब जरा देखेंगे। I'm writing the important data on the question. In the meantime, you should also copy it down. So price is given as rupees 600, और हमारी स्कीम क्या है? स्कीम है 300 का डाउन पेमेंट और 360 rupees after 2 months. 360 after 2 months, isn't it? And he's asking what is the R? What is the R? Okay, I'm stopping the screen share and we are going into discussion now. Yes, please. This is not a question on EMI. Simple idea. अब इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे? Would you like to take a shot on this? देखो 600 में 300 का तो so sorry. There are 2 ways you can pay for this phone. या तो upfront 600 rupees दे दो, काम खत्म हो गया, फोन लेके घर आ जाओ. That is one. Second, now this is a scheme given by the dealer to you
क्या you pay 300 down payment and after 2 months there is no installment, 2 महीने बाद आप कितना पे करोगे? Rupees 360. So how much is the principal? Can you tell me principal? Yes, please. 600. No. अरे बेटा 300. 600 में से तो 300 का डाउन पेमेंट हो गया, तो वो तो लोन आपने लिए ही नहीं ना, तो कितना हो जाएगा? 300. 300. अच्छा, this amount paid. अब we are only talking about the extra, not the down payment part. Down payment तो गया अपने हाथ से. It was not a loan only. ठीक है? So this is how much? 360 you are paying. 360. So interest कितना है? Simple interest कितना है? 60. टाइम कितना है? 2 months. आर मेरे को निकालने का है. तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल हो गया कि सिंपल The rate is 2. टाइम इज 2 months. Can I share the question once again with you guys? थोड़ा सा फटाफट नोट भी कर लिया करो, अगर नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं. ये देखो, after 2 months, can you see that? One second. I'm really sorry. मैंने थोड़ा सा कुछ गड़बड़ कर दिया. Hold on. Rather than sharing screen, I opened it here. Now, watch this. A cell phone is available for 600 or 300 cash down payment together with 360 to be paid after 2 months. Find the rate of interest. Is it okay now? Yes. Now, so this is what is simple interest is PRT by 100. Okay. Simple interest is given as 60. P 300. T 2 by 12. R we do have to find out. I hope this formula strikes you. Can you tell me why I have done 12 here? Because it's 2 months out of a whole year. Very good. Excellent. Very good. So we need to convert everything. This R is going to be in percentage per year, per annum. तो मुझे इसको भी अपने को per year, मतलब year में change करना पड़ेगा. 2 by 12 हो जाएगा. एक साल में 12 महीने. Now you solve it. Let's do that. This gives me 3, 2, 6 ja, 3, 2 ja. So R, this 2 comes and gets multiplied here. 120%. Now imagine rate of interest is 120% per annum. Now why I'm saying imagine and I have a surprised look in my face. Reason being, कई बार आप शॉप में जाते हो और दुकानदार आपको बोलता है कि इतना आप डाउन पेमेंट कर दीजिए सर, और इतने का हम ईएमआई बना देते हैं. And you think, अच्छा छोटी-छोटी EMI है, we can pay it very easily, very comfortable. You don't understand what is the rate of interest you land up paying. I hope you get that. So this is not a question of installment, but it's still very interesting question to understand. Is it clear, everybody? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So let me go to the next question. और मैं कुछ installment का कोई interesting question लेने की कोशिश करता हूँ. Simple interest based. Okay. If you are able to do this, hopefully you have understood the idea. Excellent question thrown in front of you. Now what it says, Samsung mobile phone is available for 2,500 cash or 520 down payment followed by 4 equal installments. So this question has got a complex थोड़ा सा है. Down payment भी करवा रहा है और बाकी part का installment भी break कर रहा है. If the rate of interest is 25% per annum simple interest, calculate the monthly installments. Monthly, मतलब EMI, not EAI. ऐसा नहीं है. You want me to solve it or would you like to take a shot on this? I'll give you a very simple trick. No formula, nothing. Straightforward. कैसे करते हैं इसको? Let me write the data. Price of the phone is 2,500 rupees. Down payment is 520 rupees. Okay. Then R is given as 25% per annum and 4 EMIs. And he's asking what is the EMI का value क्या है? Anything else that is left? Okay.
आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है, एक सेकेंड गाइज, मैंने सबका अनम्यूट किया था, आपने लेट ज्वाइन किया होगा बेटा। लेट मी अगेन, कई बार टेक्निकल रीजन से बच्चे बाहर हो जाते हैं ग्रुप में से, तो उनको मैंने चालू कर दिया है। नाउ इज योर फोन अनम्यूट? ट्राई वंस। हेलो, ओके, फेयर इनफ। नाउ दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैड कि एक मोबाइल फोन है सैमसंग का, वो 2,500 रुपए का मिल रहा है बाजार में, अपन ऐसा जाके खरीद सकते हैं, लेकिन देयर इज अ पॉलिसी स्कीम आल्सो कि 520 का डाउन पेमेंट कर दो। He says the rate of interest is going to be 25% per annum, ध्यान रखना, पर ईयर। बोला आपको 4 इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट में देना है, 4 इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट में देना है, ठीक है। तो बताइए ईएमआई कितने की होगी? हालांकि दुकानदार ने मुझे बताना चाहिए, पर नाउ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ कैट एंड मैथमेटिक्स परस्यू कर रहे हो आप एप्टीट्यूड टेस्ट में, तो बताओ फिर। तो इसको मैं थोड़ा सा डिजाइन ड्रामा करके बताऊंगा, थोड़ा समझना, हालांकि है एक छोटा सा क्वेश्चन। वेल, तो मेरा लोन अमाउंट कितना होगा? लोन अमाउंट कितना होगा, जल्दी बोलो। 2,500 minus 520. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी 1980. 1980. Okay, 1980. Now, if I decide to pay it at the end of 4 months, तो कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? कैन यू फाइंड आउट? 4 महीने बाद सीधा अगर मैं पे करूंगा तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा, बताइए। मुझे पे करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, 1980 इंटू 25 इंटू बाई 12 और 4 इंटू 100, ऐसा, ये ऐसा लिख देते हैं, 100 इंटू 12। आर यू देयर विथ मी और नॉट? जरा सोचो इसके बारे में। ये प्रिंसिपल है, ये लोन का अमाउंट है। अगर मैं सीधा 4 महीने बाद पे करूंगा तो पहले वो अमाउंट निकालना जरूरी है, ध्यान रखना। तो मैं 1980 इंटू 25% इंटू 4 मंथ्स, तो मैंने 4 डिवाइड बाय 12 कर लिया। कैन यू टेल मी व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट प्लीज? 140. नहीं, कुछ गड़बड़ कर रहे हो। देखो 25 चौक 100, 4 4 कैंसिल, 12 से डिवाइड किया तो 12 1 कम 12, 165 आ रहा मेरा। तो Yes, the same here. 165 आना चाहिए। कैलकुलेशन एरर मत करना, थोड़ा सा टेबल वोबल याद करनी पड़ेगी, है ना। 165। तो अब सोचो कि मुझे 4 साल बाद अमाउंट कितना देना है, 4 महीने बाद कितना अमाउंट देना है। तो अमाउंट देना है मुझे, अमाउंट टू बी पेड इज इक्वल टू 1980 प्लस 165, 0 plus 165. दैट इज 2145. इतना मुझे लोन टू बी डिस्चार्ज्ड। प्लीज अंडरस्टैंड, ये वैल्यू हमको निकालना जरूरी रहेगा। लोन टू बी डिस्चार्ज्ड मुझे कितना देना है। अब इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं गाइस, मैं 100 रुपए वाला भी एग्जांपल ले सकता हूं, पर उसकी जरूरत नहीं है। चलो वही ले लेते हैं, उसी से करते हैं कि मुझे 4 इंस्टॉलमेंट देने हैं, तो 100 100 100 100, ये 4 100 100 की इंस्टॉलमेंट्स में एज्यूम कर रहा हूं, लेट कर रहा हूं। क्या लिख रहा हूं यहां पे? लेट ईच इंस्टॉलमेंट इज ऑफ ₹100। कहानी कहां से चालू होगी, ध्यान देना, यहां से चालू होगी, यहां से चालू होगी ऐसे, और ये आखिरी इंस्टॉलमेंट है 4 मंथ के एंड में। अच्छा, अब ध्यान देना, जो बोलने वाला हूं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला बनने वाला, थोड़ा सा, बहुत छोटा सा। इसको अगर मैं यहां पे करता हूं तो मुझे कितना देना पड़ेगा? इसको अगर मैं यहां पे करता हूं तो मुझे कितना देना पड़ेगा? वो बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है गाइस, और वो बहुत ही सिंपल टू कैलकुलेट है। 125. नहीं 20, ये अगर एनुअल होता तो 125 होता, लेकिन ये इंस्टॉलमेंट क्या है बेटा? 4 months. मंथ। 1.66 प्लस 25 by 12। 12. आर यू देयर एवरीबॉडी? Yes. 100 तो देना ही पड़ता है ये, और उसका 1 महीने का ब्याज, 1 साल का 25 रुपए है, तो 1 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा? 25 by 12। अच्छा, इसको जब यहां पर पे करूंगा तो कितना करूंगा, जल्दी बोलो। अब 2 महीने का ब्याज, 1 महीने का तो 2 महीने का कितना होगा? 100 plus 50 by 12. वेरी गुड, एक्सेलेंट बेटा, 50 by 12।
ये जरा ये लिख देखना कि आई कैन टेक सर्टेन थिंग्स कॉमन आउट एंड स्टिल 1 2 3 से काम चल जाएगा, ये 1 ये 2, कैन यू सी दैट? नाउ वॉच दिस, इसको जब मैं यहां पे करूंगा तो कितना देना पड़ेगा? 100 plus 1 is plus 150 175 plus 75 by 12. आई होप यू आर एबल टू अप्रिशिएट व्हाट आई एम डूइंग। ये इसका फंडा पहले बता चुका हूं मैं, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया होगा उनसे मिस हुआ होगा, वो रिकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है? अब जरा देखते हैं कितना पे करना है टोटल। यहां पर मैं सम करने वाला हूं, तो 1 2 3 4 यहां पर लिख लिया 400 प्लस 25 by 12, 50 by 12, 75 by 12. When the denominator is same, you can simply add the 150 by numerator. 12. You can simply add the numerator. 150 by 12. 150 by 12. By 12. Don't reduce it. इसको ऐसे रहने दो, ठीक है? यहां तक पहुंच गए अपन। मतलब this is the amount paid by us. This is equal to how much? Can you tell me? This is equal to how much? ये जो अमाउंट है किसके बराबर होना चाहिए? इसको सेट ऑफ करेगा, इसको सेट ऑफ करेगा, 2145 के लोन को सेट ऑफ कर देगा। कितना? 400 plus 115 by 12. Again we are looking for a multiplier, guys. Because of lack of space, can I remove this part, first front part? इसको मैं Yes, हटा रहा हूं, इसको मैं हटा रहा हूं। Now यहां लिख रहा हूं 400 plus 150 by 12, ठीक है? आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, इट इज वेरी इजी टू सॉल्व। 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड किया तो ये कितना हो जाएगा? 50, और ये हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा? 4 चौको 16, ये हो जाएगा 1650 by 4. हाउ डू आई ऐड? 4 into 400, 1600 plus 50, तो 1650 और डिनोमिनेटर में 4, तो ये कितना हो गया? 1650 डिवाइड बाय 4, यहां तक आ गया। दिस इज इक्विवेलेंट टू the amount to be discharged. How much? 2145. ये ध्यान रखना, हमारा प्रिंसिपल कितने का, इंस्टॉलमेंट कितने का अपन ने अज्यूम किया हुआ है? 100 का। Can you tell me how I can get this become this? By multiplying it by 5.2. खैर जा बेटा, थोड़ी देर के लिए रुक जा, बहुत अच्छा बोला तूने, well done actually. 2145 divided by this 1650 into 4, and somebody in the class was gracious enough to solve it. कितना है बेटा? 5.2? Yes, sir. 5.2. Yes, sir. आ गया 5.2। ये निकालने की जरूरत नहीं, फिर भी तुमने निकाल लिया तो अच्छा है। सो 5.2 यहां मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट कितनी की आ जाएगी? extremely good question. I have seen this question personally in exams like CAT, ZAT, IFT, NMAT, SNAP, इस तरह के सारे एग्जाम्स में दिखते हैं। कभी सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड, कभी कंपाउंड इंटरेस्ट बेस्ड। इफ यू नो द ट्रिक, ये सब पूरा ड्रामा करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। आई एम राइटिंग द डेटा, आई एम सॉल्विंग इट एज अ स्टूडेंट विल डू इट इन क्लास 9th and 10th if it is taught. But you can simply add यार, अच्छा 25 by 12, 50 by 12, 75 by 12, 150 by 12, तो 400 plus 1, सीधा आंसर ये निकालोगे आप। This is equal to this, therefore 100 is equal to what? Why 100 is equal to this? Because we had, हमने क्या assume किया था कि इंस्टॉलमेंट कितने की है? बेसिक अमाउंट 100 है, तो 100 में मल्टीप्लायर डालेंगे तो ये मेरा 520 का, मतलब मुझे 520 520 520 520, मतलब 2080 रुपीज चार्ज पे करूंगा। ध्यान से सुनना जरा, मैं बोल रहा हूं कितना करूंगा। 520 के 4 इंस्टॉलमेंट है, तो 2080 रुपीज। जब मैं इस तरीके से 2080 रुपीज का लोन डिस्चार्ज पे करूंगा तो मेरा लोन कितने का चुक जाएगा? 2145. Otherwise, if I had not taken installment scheme, I would have paid how much? 2145 rupees. और लोन कितने का था, कोई बोल सकता है क्या? अरे, are you there? Yes, yes. This Yes, was the sir. loan. This was due for payment, and this is what we actually paid in 4 equal installment. Why we paid less? I have given you the reason कि जब आप इंस्टॉलमेंट में पे करते हो तो बीच बीच में जो प्रिंसिपल पे करते जा रहे हो उस पर फिर आगे चल के इंटरेस्ट नहीं लगता, इसलिए आपका ये अमाउंट कम हो जाएगा। कैन वी राइट समथिंग लाइक दिस, दैट प्रिंसिपल एक्चुअली पेड
actually due. Please understand this. ये EMI के थ्रू पेमेंट है, ये प्रिंसिपल से तो ज्यादा पे करना पड़ेगा, Yes, sir. लेकिन जो एक्चुअली ड्यू है उससे कम पे करना पड़ता है. एंड वी गेट द वैल्यू व्हाट. दुकानदार से पूछने की जरूरत नहीं, इमीडिएटली यू कैन डू दिस कैलकुलेशन. अच्छा मेरी 520 रुपए की EMI आएगी. आई होप इट इज ओके. नाउ यू वांट मी टू स्पेंड some more time on simple interest or go to compound interest? Choice is yours. एक आध क्वेश्चन और करना हो तो अपन कर सकते हैं. I want you to attempt. See, I can solve all the questions. मैं तो पढ़ाता रहा हूं ये चीज है ना. आप जब एक दो क्वेश्चन कर लोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा कि यार इस वेबिनार का हमें फायदा हुआ. We are able to appreciate this. Is that okay? एक दो क्वेश्चन और करते हैं गाइस, है ना. फटाफट करेंगे. Okay, we have got. Let me do the screen share now. I am giving you question number 4 and 5. ये दो क्वेश्चन करके then we will move on to compound interest EMIs, which are very very simple. They are considered to be extremely difficult in typical classroom scenario. But मैं आपको एक आज ऐसी ट्रिक देने वाला हूं जो आपका 1 से 1.5 मिनट के अंदर 3.5-4 मिनट वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. So wait. First attempt this simple interest वाला EMI. Please. I have given a clue on the board. Principal 2,400 में 1,000 का तो डाउन पेमेंट कर दिया, तो लोन अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट इज 1,000. अच्छा टोटल इंटरेस्ट पेड आपने 800 की दो इंस्टॉलमेंट दी हैं, तो टोटल कितना दिया आपने 1,600 और पे करना था 1,400, तो इंटरेस्ट कितना है 200. Now let's make this line diagram. I'm quite happy that you guys should make this kind of visual appealing diagram. तो इस 1,400 पे जब ये 0x टाइम जब मैंने खरीदा होगा, 1 साल तक इंटरेस्ट दिया होगा उस पे, फिर 800 पे कर दिया. बेसिक फंडा 800 पे कर दिया. तो 800 पे कर दिया तो अभी कितना प्रिंसिपल बचा हुआ है 1,400 में से 600, उसका 1 साल का इंटरेस्ट, और आखिरी में अपन ने 800 रुपीस दिया. Is it clear? Absolutely. Yes, sir. Yes, sir. तो इस 1,400 पे 1 साल का इंटरेस्ट और 600 पे 1 साल का इंटरेस्ट, कैन वी कंबाइन देम? दैट इज हाउ मच? 2,000. So I am writing here 2,000 रुपीस का 1 साल का 8% के इंटरेस्ट के हिसाब से रेट इंटरेस्ट कितना है? 200 रुपीस. 200. Guys, this is done. We should get the value of R. ठीक है, तो 2 zeros gone, 20 ये हो जाएगा 10. हाँ, R is coming as 10% only. I'm really sorry, मैंने if I कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने? R is coming as 10%. Let me. हो क्या गड़बड़ करी जरा सोचो. Sir, 2 monthly installments. Very good. तो यहाँ और क्या डालना चाहिए था? 12. तो ये 10 यहाँ आया था और ये 12 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 120% पर एनम. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 120% पर एनम और 10% पर मंथ. इज इट क्लियर? बिकॉज अपन ये भूल गए थे इस पूरे क्वेश्चन में, देखना ध्यान से कि मंथली बात कर रहा है, कि 2 मंथली इंस्टॉलमेंट्स हैं. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Alright. ये लास्ट क्वेश्चन एक और करेंगे इसका, इसके बाद then we'll move to the compound interest, which is extremely important. What annual installment will discharge a debt of 2,360? So amount is equal to 2,360 rupees in 4 years. Okay. So time is equal to 4 years and rate of interest is given as how much? 12%. This question I'm going to be using short trick how to do it, and this is simple. Or we have to find out EAI. Equated annual installment. 4 years में 4 installment में पे करना है. फिर से रीड करो एक बार. What annual installment will discharge a debt of rupees 2,360?
60 due in 4 years at 12% per annum simple interest. Yes, please. Anybody? बड़ा सिंपल तरीका बताऊं इसका करने का, शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी? Trying, sir. ओके, ट्राई कर लो उसके बाद. So 588 answer. नो, 588 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 2000 और 88 इंटू 4 दैट गिव्स यू 8 चौको 32, मतलब तकरीबन अमाउंट के बराबर ही पे कर रहे होंगे. वो तो ठीक बात नहीं है, अमाउंट से कम आना चाहिए, सिग्निफिकेंटली कम आना चाहिए. आई एम जस्ट सेइंग ऑब्जर्वेशन बेस्ड आंसर. अगर मैंने जानबूझ के ऑप्शन किसी भी उसमें नहीं दिया, ऑप्शन से लोग टिक कर लेते हैं फटाफट. और कैट में और दूसरे एग्जाम्स में आजकल विदाउट ऑप्शन क्वेश्चन आने लग गए. यू हैव टू पंच इन द डेटा, द आंसर. ओके, एनीबॉडी? देखो, इसको करने का मैं तुमको तरीका बताता हूं. हो सकता है आपको ये समझ में आ जाए, ये हो सकता है ये समझ में आपको आ जाए. ठीक है, वॉच दिस. 100, 112, 124, 136 को ऐड करो. ये कितना दे रहा है? 472, 472. जरा ध्यान देना मैं जो बोल रहा हूं. अभी मैंने इस बार बिल्कुल भी वो लाइन डायग्राम वगैरह नहीं बनाया. दिस 472 इज इक्वल टू 2360. सो मल्टीप्लाई इज 5. सो 100 रुपीज की ईएमआई थी, मल्टीप्लाइड बाय 5, 500. अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है. एंड यू कैन आस्क मी क्वेश्चन नाउ, ये कैसे किया तुमने? हेलो, आर यू क्लियर व्हाट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड? Yes. आर यू एवरीबॉडी? देखो, मैंने जो पहले ड्रामा करके कर रहा था ना, मैंने उसको हटाया है. Yes, sir. Got 100, 100, 100, 100. ये हो जाएगा 12% के हिसाब से 112 रुपए, ये हो जाएगा 124 रुपए, ये हो जाएगा 136 रुपए. इसको ऐड किया गया 472. दिस इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट डिस्चार्ज. जितना हम नॉर्मली 12% 4 साल के बाद पे करते, कितना देना? मैं 2360. लेकिन हम उसको ईएमआई में कर रहे हैं तो हमें कम देना पड़ेगा. सो दिस इज इक्वल टू 2360. मल्टीप्लायर आ गया 5. 2360 डिवाइड बाय 472 इज 5. अपन ने ईएमआई कितने की बना रखी है? 100 की. इसका मतलब है अगर मैं 100 की ईएमआई दूंगा, ध्यान से सुनना, 4 दूंगा, तो 472 का लोन डिस्चार्ज हो जाएगा. अमाउंट हम पे कर देंगे. कितने का? 400 नहीं, 472 का. Therefore, अब मैं यहां से मल्टीप्लाइड हो रहा हूं. एक्चुअल, दिस इज माय assumed value. If this is equal to 2360, so this is multiplier is 5. तो 100 रुपीस की ईएमआई में अगर 5 मल्टीप्लाई करोगे तो each amount is going to be EI is going to be 500 rupees. Is it clear? Yes, sir. Make sense है ना? तो ये सब करने का भी जरूरत नहीं है गाइस. थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ये बनता चला जाएगा. So I hope this is understood well. मेरे पास में तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेके आया था, पर मुझे नहीं लगता कि टाइम विल परमिट दैट मच. सो लेट्स गो टू कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हिच इज एक्सट्रीमली इजी. फॉर्मूला देखोगे, कभी फॉर्मूले से मत करना गाइस, क्योंकि बुक में टीचर भी कई बार फॉर्मूला याद कर लो, उसमें ये वैल्यूज डाल दो, आ जाता है. इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला. सो लेट मी गिव यू अ ट्रिक. मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का आइडिया तो बता दिया था कि व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, वो तो बता दिया था. ठीक है. If I have to, I'll take 2 minutes to explain कि ये इंस्टॉलमेंट कैसे निकाली जाती है. इन प्रिंसिपल कंप्यूटर्स कैसे निकालते हैं? They say amount to be paid is equal to x upon 1 plus r by 100 to the power 1 plus x upon 1 plus r by 100 to the power 2 plus x upon 1 plus r by 100 to the power 3 and so on so forth. और ये x क्या है? दिस x इज कॉल्ड EMI और EAI. किसी ने बोला आपको इतना लोन चुकाना है, लोन टू बी डिस्चार्ज, R दिया हुआ है, एवरीथिंग इज गिवन, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर.
ये जो ऊपर पावर लगा है n है और x की वैल्यू निकालनी है. Just imagine if this comes in CAT where you have got 2 to 3 minutes to attempt a question maximum for a good attempt, you will never be able to use this. इसका समेशन का फॉर्मूला होता है, एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला जनरेट किया जाता है. मैं जो बताने वाला हूं, it will not take you more than a minute. Let's pay attention here. Pay attention here. Can I say, अब इसको ये जो मैं बोलने वाला हूं उसका पहले प्रीफेस बताने वाला हूं, पहले सीधा क्वेश्चन में नहीं जाएंगे, प्रीफेस ये इसका कि if I take a say loan on 10%, अगर मैं 100 रुपए को 10% के हिसाब से 3 साल का लेता हूं या 2 साल का लेता हूं लोन, ध्यान से देखना, तो पहले साल में 10 का 11 होगा और अगले साल में भी 10 का 11 होगा. अभी मैं इसका रीजन बताता हूं मैं क्या कर रहा हूं. This is going to be 110 and this is going to be 100 and this is going to be 121. अगर मैंने प्रिंसिपल 100 रुपए का लिया हुआ, जरा ध्यान से देखना गाइस, ये इसका शॉर्ट ट्रिक नहीं है, तो बहुत आसान है. मैं क्या कर रहा हूं, 10 डिवाइड बाय 11 का होल स्क्वायर, 10 डिवाइडेड बाय 11 का होल स्क्वायर, ऐसा कर रहा हूं. ठीक है. नाउ वॉच दिस. ये फॉर्मूले के अंदर इस्तेमाल होता है क्योंकि अपन लिखते हैं क्या, लिखते हैं अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर n. अब जरा देखना, अगर r को मैंने 10% रखा है, r को अगर 10% रखा है, तो ये अब प्रिंसिपल को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो ये क्या बनेगा, p 1 प्लस 10 अपॉन 100 टू द पावर 1. ये कितना होता है, दिस इज कॉल्ड 11 by 10. ठीक है. When time is 1, if I take time and n is equal to 2 लूंगा तो क्या बनेगा, p 1 plus 10 by 100 का स्क्वायर, this is going to give us 121 upon 100. If you are a good student, you will appreciate this guys. जरा ध्यान से देखना भी, और मतलब ये जो वाली ये टाइम्स p ऐसा आएगा, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, a is equal to p times 121 by 100. अगर मैं इस p को नीचे लाऊंगा तो ये यहां आएगा और यहां से हट जाएगा. इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल इज 100 रुपीज, अमाउंट इज 121. यहां पर मतलब क्या है, यहां पर ये a था, p को इधर लाए. इफ अमाउंट प्रिंसिपल इज 10 रुपीज, अमाउंट इज 11 रुपीज. इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने 10% में लोन लिया हुआ है, 10% में लोन लिया हुआ है, तो अगर 1 साल का लोन लिया है तो 10% क्या होता है, 10% इज रिटन एज 1 by 10. तो 10 रुपए का 11 रुपए चुकाऊंगा. दिस इज गोइंग टू बी प्रिंसिपल, दिस इज गोइंग टू बी अमाउंट. अगर 10 रुपए का लोन लिया है तो कितना चुकाऊंगा, 11. वॉच दिस पार्ट. इफ प्रिंसिपल इज 10, अमाउंट इज 11. अगर ये 1 ईयर का है, अगर 2 साल में होगा तो इसका स्क्वायर कर दो, 100 और ये हो जाएगा 121. दिस इज इन केस ऑफ 2 ईयर, अगर 2 साल का लोन है. अगर 3 साल का लोन है तो क्या करोगे, बताओ मुझे. 10 का क्यूब, ये कितना हो जाएगा, 11 का क्यूब. वो क्या बोलना चाहता है, जरा ध्यान समझना. If I take a loan of 10 rupees, I'll have to pay 11 rupees if it is a 1 year loan. If a loan is of 100 rupees, if it's a ratio, then how much I have to pay? 121. If I have taken it for 2 years at the rate of 10%. If I have taken a loan of 1000 rupees and it is a matter of 3 years, then I'll have to pay how much? 1331 rupees as per compound interest. मतलब क्या चल रहा है, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर. ये क्या चल रहा है, 10 का क्यूब, 11 का क्यूब. I hope you are able to appreciate this. When the rate of interest is 10%, तब ये चल रहा है. थोड़ी देर के लिए एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, ध्यान से समझना इसको. Suppose I say 12.5%. R is equal to 12.5%. Now, when you study at CH Edgemakers, we give you a table where how to convert percentage into fraction. ये percentage दिया है. Can I write this as 125 upon this can be written as 12.5 upon 100
ऐसा. When you solve this, how much do you get? 1/8. आप करके देखो. This is 12.5. अगर आप इसका एक डेसिमल हटाओगे तो एक 0 आ जाएगा, फिर इसको कैंसिल करोगे तो 1/8 मिलेगा. इसका मतलब क्या, जरा समझना कि अगर मैं 12.5% के हिसाब से एक लोन लेता हूं तो मुझे एक साल में कितना देना पड़ेगा, जल्दी बोलो. अगर 8 रुपए लिया है, इसका मतलब ये 8 रुपए पे इंटरेस्ट बनता है 1 रुपए का, तो मैं पेमेंट कितना करूंगा? 8 + 1 9 रुपीज. दिस इज प्रिंसिपल एंड दिस इज अमाउंट. नाउ 2 इयर्स में कितना पे करूंगा, जल्दी बोलो. अगर 64 लिया था तो 81 पे करूंगा. अगर 64 लिया था तो 3 इयर्स में कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो. Cube of this. So I hope what is the key here to understand this rate of interest. 1/8 मतलब 8 का 9 देना है. बस एक निकल आया, दूसरे साल में उसका स्क्वायर, तीसरे साल में उसका क्यूब, चौथे साल में उसका फोर्थ पावर. This question has been appearing in CAT for last 2 years regularly, including IPM exams and other top level exams. इस टाइप के. ठीक है, तो ये प्रिंसिपल अपने को ध्यान रखना है. And with this principle, let me give you a few questions. Is it clear, guys? अभी तक जो बताया समझ में आया क्या आप लोगों को? Yes, sir. Okay, all right. Let me give you compound interest. Okay, there you go. Let's try and use this information and solve compound interest based installment questions. It says a builder borrows 2550 to be paid back with the compound interest of 4% per annum and by end of 2 years in 2 EAI, equated yearly installments, annual installments. How much will the installment be? ये installment कितने की बनेगी? All right, I think I have did some लफड़ा here. Screen share करना था और मैंने कुछ और कर दिया था. Now, can you hear me now? Watch this. A builder borrows rupees 2550 to be paid back with the compound interest at the rate of 4% per annum by end of 2 years in 2 equal yearly installments. मतलब क्या है कि मैंने लोन बिल्डर ने कितना लिया हुआ है 2550 का. इट्स ए लोन टेकन, not the amount to be paid. Loan taken is this much. 4% का इंटरेस्ट रेट है, उसको 2 साल में 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है, तो इंस्टॉलमेंट कितने की आएगी? Is it okay? Now, only thing that you need to focus in the beginning is what is R? Per annum. 4% per annum. And प्रिंसिपल अमाउंट borrowed is 2550. मुझे EMI कितने की निकालनी है? EMI for 2 years. EAI for 2 years. Now let me try and help you out here. Watch this. How to solve these questions in fractions. ये simple question. Now watch this. What is the meaning of this word 4? This is your critical step. ध्यान रखना. What is the meaning of 4%? 4% मतलब होता है 4/100, मतलब 1/25. Are you there with me, everybody? Yes, sir. 1/25. मतलब अगर मैं यहां लिखूंगा प्रिंसिपल, यहां लिखूंगा अमाउंट, एंड दिस ट्रिक इज फैंटास्टिक. नाउ अगर मैं 25 रुपए का लोन लेता हूं तो मुझे कितना पे करना है? बोलो. 25 का लोन लिया तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा एक साल में? 25 का लोन अगर लोन लिया है तो मुझे पे करना पड़ेगा 25 + 1 26. ये 1 ईयर का. अब ये 2 साल का केस है. इट इज अ केस ऑफ 2 इयर्स. स्क्वायर करो. 25 का स्क्वायर इज हाउ मच? 625. 676. Guys, now comes the critical part of the question. Watch this. बोलता है कि एक बार आप 26 रुपए पे करो, एक बार आप 676. ये नहीं चलेगा. क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज हमें क्या चाहिए?
इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट, दोनों इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रिपीट दिस, अगर मैं 25 रुपए लेता हूं तो मुझे पे करना पड़ता है 1 साल बाद 26 रुपए। 2 साल में अगर पे करना है तो मैं 625 रुपए लेता तो मुझे पे कितना करना पड़ता? 676। He says these two payments that we are making have to be equal, EAI, और हम ये पे करने की सोच रहे थे और ये इसके बराबर नहीं। तो what I should do is I should simply multiply 26 here। 26 इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी कितना बन जाएगा? 676। मेरा जो अब पेमेंट वाला पार्ट है वो इक्वल हो जाएगा, ये 676 ही। तो जो आप यहां पे करोगे वो मल्टीप्लाई करोगे, वो यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, जरा ध्यान समझना, इसका मतलब है 25 into 26, how much? 650। अगर मैं 650 रुपए का लोन लेता तो मुझे कितना पे करना पड़ता? 1 ईयर में। नाउ दे आर इक्वल, नाउ दे आर इक्वल, क्योंकि वो EAI की बात कर रहा है। नाउ लेट मी सी, ये EAIs हैं गाइस, और ये अभी मैं कितना पे, जरा प्रिंसिपल देखना, 625, इन दोनों को ऐड किया 1275 रुपए। इसका मतलब क्या है जरा समझना, अगर मैंने 1275 का लोन लिया होता, प्रिंसिपल लोन लिया होता, तो मुझे 2 इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती, 676 एंड 676 की, और मेरा लोन पे हो जाता एट द रेट ऑफ 4%। इज इट ओके? 676 की EMI 1 होती। नाउ हाउ मच इज दिस मनी बोरोड गिवन टू यू? 2550. Multiplier is 2. Multiplier is 2. Multiply this 2 here and you get 1352. I think this is the easy part. तो अगर मेरा लोन इतने का होता तो EMI बनती 676 की, एक 676 की 1 साल बाद देते और दूसरी 676 के दूसरे साल में देते, तो EAI would have been 676. Now if this loan gets multiplied to 2, this installment also gets multiplied to 2. The answer is 1352. Is it clear? Making some sense? Yes, sir. Okay. Now let me quickly do a few questions here. You cannot. Okay. All right. एक दो questions और देखते हैं गाइस, जिससे फंडा थोड़ा सा. Now, can you attempt this question, please? Can you attempt this question? Watch this. A man borrows rupees 2100. I'm writing here. Principal is 21000. 2100, 21,000. 21,000. R is given to you as 10%, and also 2 installments, 2 EAI. What we have to find out? The value of EAI. Each installment कितने की होगी? I hope you have comfortably noted down the data. It says a man borrows rupees 21,000 at 10% compound interest. How much he has to pay annually at the end of each year? मतलब fixed amount हर साल के अंत में पे करना है. If he wants to settle his loan in 2 years. Okay. Anyone? Have you done it till here? यहां तक हो गया क्या? Yes. Now watch this. This is the principal, this is amount. Now I have to make these two amounts equal. What should I do? What should I do? I multiply 11 here, क्योंकि 11 into 11 is 121. So I have to multiply 11 here also. This becomes how much? 110, and this becomes 100. This is 210, and this is how much? 121 का EAI. Now watch this. इतना easy रहता है. 210. How much is this given loan principal borrowed? 21,000. 21,000. So what is the multiplier? 100. 21,000 divided by 210. यहां पे मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 12100. ये इंस्टॉलमेंट कितने की आने वाली है? 12,100 रुपए की आने वाली है. 12,000
100 रुपीज की आने वाली है। आर यू देयर गाइस? समझ में आया? Yes, sir. Now, in CAT, exactly this kind of question, but with the idea of 3 years has been coming every last 2 years में हर सेट में देख रहा हूं, मतलब मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, हर जगह 2-3 साल से आ रहा है। उसको एक बार देखते हैं। आई एम गोइंग टू share not that question but similar question of that kind. Okay, let me yeah, let's take this. Read this question carefully, guys, and I'm 100% sure you go to the coaching classes or anywhere in the tutorial etc, they'll give you a formula, a long kind of thing. So this is, I believe, मेरे हिसाब से तो ये इसका बेस्ट सॉल्यूशन इस तरह से निकलता है। You know why you cannot appreciate the difficulty level? Students always avoid this question. Reason being this कि आपको complex वाला एरिया मालूम नहीं है। अगर वो पता चलेगा, then you will appreciate कि यार बॉस ये this was a fantastic method. तो चलो देखते हैं। बोलता है, a man purchases a motorcycle for a certain price and promises to pay the price in 3 equal installments of 10,800. Here EAI of 10,800, and how many are? 3 such installments are already given. R is given to you as how much? 20% per annum, and he's asking find the price of the motorcycle. Find P. I hope you have taken down the data. A man purchases a motorcycle for a certain price and promises to pay the price in 3 equal annual installments of 10,800 at the rate of 20% per annum. उसने बताया आपको कि आपकी हर साल की इंस्टॉलमेंट बनेगी 10,800 रुपए की। हम रेट जो ले रहे हैं 20% ले रहे हैं। आपको ये निकालना है कि वो गाड़ी की असली कीमत क्या थी। ठीक है, ये निकालना है। व्हाट इज द प्रिंसिपल बोरोड? यस प्लीज, एनीबडी? An excellent question. बोलिए कैसे करेंगे इसको? All right, let me help you out because this is a CAT question, guys. ये इसी तरह का आता है क्वेश्चन और इसको करने में बच्चों को टाइम लगता है। ठीक है, using that formula which I had given you earlier. कैसे करेंगे इसको? Okay, so this is going to be, what is 20%? 1 by 5. 1 by 5. तो प्रिंसिपल अमाउंट लिखने का 5 का 6, 25 का 25, 36. और 3, और तीसरा क्या आ जाएगा बेटा? 1. हाँ ठीक बोल रही, 125 to 125 और 216. वेरी गुड। ये तुमने क्वेश्चन अगर सीख लिया, आई कैन गारंटी आने वाले सालों में जब भी आप कैट दोगे तो ये तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट देगा। ये क्वेश्चन आते ही हैं इस तरह के। ठीक है, 2-3 तरह के आते हैं जिसमें ये बहुत पॉपुलर। अच्छा बताओ, अब ये ईएमआई है बेटा, पर ये ईएमआई तो अलग अलग है। अब मुझे हर चीज को क्या बनाने का है? इक्वल बनाने का है ईएमआई को। तो कैसे बनाऊंगा? अगर मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दूं, ईएमआई बनाने की कोशिश करो, इंटू 6 कर दूं तो 216 हो जाएगा क्या? यस सर। और यहां पे क्या मल्टीप्लाई कर दूं बेटा? 12, 36। ऑर्डर रहता है ये, जैसे 636 216 होता है ना, तो 636 मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इससे हमें बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। इससे ये तीनों क्या बन गए? 216, मतलब हमारी जो ईएमआई 216 की बन गई। लेकिन जो इसको किया है वो यहां भी करना पड़ेगा, इंटू 6 और इंटू 36। गाइस दिस इज 180, दिस इज 150 एंड दिस इज 125। टोटल प्रिंसिपल पेड, जरा ध्यान से देखना, अगेन एक वन लाइनर है। ऐड करो इसको तो ये हो जाएगा 5, 5 2 7 8 15 की 5 और 3 1 4। हेलो, वॉच दिस नाउ। अगर मैं 455 रुपए का लोन लेता, गाड़ी की प्राइस ये होती, तो मुझे इंस्टॉलमेंट कितने की देनी पड़ती? हेलो, 216। वेरी गुड। अब मल्टीप्लाई ढूंढो। ये चीज मुझे दी हुई है, इस बार ये नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। कितना है? 10,800। मल्टीप्लायर इज 50। याद नहीं है? देखो 102 2 जा 216। देखो 108 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 100 और ये बनेगा 2 और 2 से डिवाइड किया तो आ जाएगा कितना? 50। तो 50 मल्टीप्लाई 50 into this and you get the answer। जरा देखते हैं,
5 5 25 की 5 कैरी 2 5 5 25 2 27 कैरी 2 5 20 2 22। ये क्या आ गया जरा बताओ, ये क्या आया? This is the this is amount or cost price Loan of the taken. motorcycle. Price of bike. मतलब ये क्वेश्चन मैंने दोनों तरफ से कराया कि अगर लोन मैंने ये लिया है और 3 किस्तें काटनी है तो कैसे काटोगे आप ईएमआई। अगर बोलता है अगर मेरी किस्तें इतने की हैं 10,800 की, तो बताओ मैंने लोन कितने का लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन। सो ऑल सच क्वेश्चंस आर extremely important for various exams and they're usually not discussed in the classroom environment. Simple interest, compound interest, बाकी सब हो जाता है, ये छूट जाता है हमेशा। I hope ये समझ में आया। You want to do one more question or we can call it a day? Yes, sir. You want to do One more question. हाँ, one more question so that you get the confidence बेटा। मेरे पास तो बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर आप बोलोगे तो डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा मैं। You can copy it from there also. Okay. Now, simple question of similar kind. Simple question of similar kind. A man borrows rupees 12610. So principal is 12610. Okay, rate is 5%. R is equal to 5%. EAI of 3 years. 3 इंस्टॉलमेंट बनाने का है, ठीक है। I'm really sorry. My mistake, guys. My mistake. मैं बार बार एक गड़बड़ कर देता हूं, ये भूल जाता हूं कि मैं जूम में पढ़ा रहा हूं। I'm so sorry. Now question is visible. A man borrows rupees 12610 at 5% compound interest. How much he has to pay annually at the end of each year to settle the loan in 3 years? 3 साल की EIA निकालनी, ठीक है। ये ध्यान रखना, इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट में आर का हम सीधा यूज कर सकते हैं 5 का, पर अगर इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होगा तो मुझे आर को क्या करना पड़ेगा, आर इज रेट पर ईयर, तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 12 से। अगर क्वार्टरली होगा, अगर बोलता है कि ही वांट्स टू पे इट इन 3 क्वार्टर्स एंड दैट इज अ गुड क्वेश्चन, लेवल क्वेश्चन, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो आर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन को लास्ट उस टाइप का करेंगे एंड विल कॉल इट अ डे देन। अ मैन बोरोस 12610, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% एंड 3 इंस्टॉलमेंट्स। चलो आप भी करो, मैं भी करता हूं। तो प्रिंसिपल अमाउंट 20 का 21, 400 का 441, 8000 का 9261। यस प्लीज करिए, फटाफट करिए। नोट किया आपने? ओके, आई एम नाउ स्टॉप शेयरिंग एंड आस्किंग यू द क्वेश्चन। आई एम रियली हैप्पी विद धारिया राजानी, इंशा खान, मृदुलांगिनी जैन, प्रिया पालीवाल, who are really working on this. Yeah. Can you tell me, आपने इतना कर लिया है क्या? हेलो? Yes, sir. 5% मतलब होता है 5/100, that is 1/20. तो 1/20 तो 20 का 21. Now, ये क्वेश्चन में कैलकुलेशन जरूर है, कैलकुलेशन है। मतलब मुझे अगर यहां से यहां जाना है, this is I can write this as 21 cube, this is 21 square, और ये था कितना 9261, ये था 441। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इंस्टॉलमेंट्स को इक्वल करना है। तो यहां पे क्या मल्टीप्लाई करूंगा, इस यहां पे क्या मल्टीप्लाई करूंगा, जल्दी बोलो। 21 और यहां पे क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 441। लेकिन यहां करना नहीं है, ये केवल डेमोन्स्ट्रेशनल, करना इधर है। तो ये 441 यहां भी मल्टीप्लाई किया और 21 यहां भी मल्टीप्लाई किया। फटाफट निकालते हैं, देखो 8820। 8820, ये कितना हो जाएगा, 8400 एंड दिस इज 8000। इन तीनों को ऐड किया तो 8 3 24, 25220। 220
20. हाँ, ये ठीक है क्या? 25,220. 220. अच्छा, okay, 220. You are saying this, correct? Yes. Okay. Now watch this. मतलब So इतने का answer लोन. is, so answer is 4630.5. Fantastic, excellent. Yes, sir. बहुत Sir, बढ़िया. sorry. अब देखो, ये टफ क्वेश्चन है, तब कैलकुलेशन में थोड़ा सा ये करना पड़ रहा है, अदरवाइज इससे कम में हो जाता. 2 EI का तो ओरली हो जाता है. ठीक है, देखो अब वॉच दिस. अगर मेरा प्रिंसिपल अमाउंट ये होता तो मेरी इंस्टॉलमेंट कितने की होती? 9261 की. मेरा लोन कितना है? ये है 12610. मतलब ये इसका हाफ है. This divided by this will give you 1/2 as a multiplier. Multiplier कैसे निकालते हैं? This divided by this 1/2. तो इसमें भी 1/2 मल्टीप्लाई कर दो. तो 9261 into 1/2, that is your answer. क्या आंसर दिया था बेटा आपने? 4630.5. ये इसका आंसर हो गया. Excellent. And this has been a pain in the neck of CAT students for so long. और इसमें इतना कुछ करने का केवल रहता है. These are highly researched kind of. इसीलिए मैंने जानबूझ के वेबिनार ऑर्गेनाइज किया था. If you can understand, let me do one more question where I'm not going to give you equated annual installment. I'm going to give you equated quarterly installments, and that is the end of the difficulty level. Can we do one more question? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Sir. ठीक है. So let me share one more question with you and try and see whether you are able to appreciate this. Okay. Okay, I'm really giving you a good sum of compounded quarterly. Can you see the question now? Sundar borrowed money and returned it in 3 equal quarterly installments. बिल्कुल भी डरना नहीं है, चाहे वो एनुअल हो चाहे मंथली हो, बस रेट को अपने को प्ले करना है. क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹17576 ईच. तो हर इंस्टॉलमेंट उसकी 17,576 रुपए की है. What sum he had borrowed if the rate of interest was 16% per annum compounded quarterly? ठीक है, तो चलो अपन लिख लेते हैं R is equal to 16% per annum compounded quarterly. ये लिख लिया. अच्छा, इंस्टॉलमेंट कितने की है? 17576. तो जो EQI है 17576 रुपीस की. इक्वेटेड क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट R दे दिया है और टाइम पीरियड इज गिवन एज 3 quarters. Okay, I hope you are there with me. I have taken down Yes, sir. all the key information here. Sundar borrowed money and returned it in 3 equated or equal quarterly installment. EQI कहलाएगा ये. I hope you are not uncomfortable with this word now. ₹17576 each. मतलब हर इंस्टॉलमेंट 17,576 रुपए की है. What sum had he borrowed? कितना उसने लोन लिया था? If the rate of interest is 16% PA compounded quarterly. Okay. So guys, this is my last question for the day. And sorry for extending the lecture. I know 1.5 घंटे हो गया है, पर जरा इसको देख लेते हैं. इंपॉर्टेंट है. अपने को करना क्या है? R के साथ प्ले करना है. If R is 16% per year, और एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4. ठीक है, तो 4 से डिवाइड कर दो. तो R dash is equal to 4% per क्वार्टर. अगर हाफ ईयरली हो तो हम किससे डिवाइड करते बेटा? 2 से डिवाइड करते हैं, है ना? ओके. नाउ तो 4% मतलब होता है PA 25 का 26. ये बार बार लिखूं क्या? ऐसा लिख सकते हैं कि 4% is equal to 4/100, that is 1/25. तो प्रिंसिपल borrowed is 25, we have to pay how much? 26. 3 क्वार्टर की कहानी है. 3 क्वार्टर की कहानी है. चलो, तो ये 25 का स्क्वायर 625 676. ओके, 1562. और ये हो जाएगा कितना? 17576. बरोबर है. अरे काम हो गया बेटा अपना.
इसको और इसको देखो, तुमको मजा आ जाएगा, इसको इसको देखो मैच हो रहे हैं, हमें Yes. मतलब मल्टीप्लायर ढूंढने की जरूरत नहीं है। नहीं है। नहीं इंस्टॉलमेंट कितने क्या है, चलो लेकिन अभी थोड़ा काम बाकी है। काम क्या है, यहां पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 26, तो यहां नहीं करूंगा, करूंगा इधर, इधर करूंगा 676, इधर नहीं करूंगा, इधर करूंगा 676। नाउ दिस इज द ओनली कैलकुलेशन पार्ट व्हिच टेक्स अवे सो मच ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यूज वगैरह। इसको बताओ मुझे कितना आएगा, 16900 16900 16250. 250. एक जरा इंटरेस्टिंग सा चीज नोट करना, ये हमेशा घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए हमेशा, ठीक है। इसको तुमने सम किया, ये कितना आया, ये मैं लोन अमाउंट निकाल रहा हूं, कितना लोन आएगा बोलो। 48,775. I am hoping and trusting and know that this calculation is correct. 48,775. जब प्रिंसिपल 48,775 का है तो ईएमआई कितने की है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, कितने की है 17,576. दिस इज द लोन अमाउंट। अगर मैं क्वेश्चन को बदल देता, इसी क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा और रूप बदल दूं, जस्ट टू गिव यू अ यू नो शॉकर, गिव यू अ शॉकर, मैं बोल दूं ये है 35, 17, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड, 152 ऐसा कर दूं। अब देखना, दिस इज नाउ ऑल गेम। तो अब EQI इतने की है। नाउ हमारा जो EQI है अभी ये निकल रहा है, और ये कितना है 35,152। व्हाट इज द मल्टीप्लायर, this divided by this, Sir, 2. 2। तो लोन अमाउंट कितना हो जाता, लोन अमाउंट कितना, इसका डबल हो जाता। आर यू देयर विद मी? Yes, sir. इसका डबल कर दो तो ये आ जाएगा 97,550. 0. 97 है। ये मैं थोड़ा जल्दीबाजी करो, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो देख लेना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, सही है. हाँ 97,550 बिल्कुल। Yes, sir, it's correct. मतलब इसी क्वेश्चन, बस इसके अलावा ज्यादा खेल नहीं होता बेटा। खेल जो होता है ना, बेसिक आइडिया ये है, एंड आई गारंटी यू गो टू यूट्यूब, जहां भी जाना है आप देखो, everybody will start with a very complex way of teaching this method which is so simple। और कुछ जगह पे तो मैंने देखा है मटेरियल में वो फॉर्मूला दिया हुआ है, कौन सा जो शुरू में बताया था कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू, अमाउंट इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस r टू द पावर r by 100 टू द पावर 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस r by 100 टू द पावर 2। ऐसा पूरा सीक्वेंस सॉल्व कराते हैं। एक क्वेश्चन करने में 7 से 8 10 मिनट भी लग सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डेटा। यहां तो कुछ भी तुम दोगे धड़ाधड़ काम हो जाएगा। सो आई होप I have not wasted your Sunday's afternoon, and it will be worth something and you'll carry it forward.